Good afternoon, sir. हेलो, कहाँ पे थे हम लोग लास्ट क्लास में? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट लिखवा रहे थे। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट में क्या लिखवाए थे? Short run total cost is defined as summation of all the expenses incurred in producing a given set of quantity. और भी कुछ था क्या उसमें? बस इतना Yes ही? sir, TC is equal to TFC plus formula उसका TC is equal to summation marginal cost और average cost और बस सर इतना ही लिखना है। शेड्यूल बनाए थे? No, sir. नो सर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सर लास्ट शेड्यूल बनाए थे सर। हम लोग को देखिए कितना सारा कॉलम बनाना है। टीसी सारा डेटा है आपके पास, आप टीसी निकाल के बताइए कि कितना आएगा। ओके सर। टीसी निकाल के बताओ कि कितना आएगा। बढ़ गया सर। कितना आया टीसी? सर 10 आएगा, 20 आएगा, 28 आएगा, 33 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 66 आएगा, 91 आएगा। वेरी गुड। सबका इतना ही आया? Yes, sir. यस सर। तो अब हम लोग को क्या करना है कि कर्व बनाना है। क्या बनाना है? कर्व। सर
तीनों का कर्व बनेगा। ठीक है, कर्व बनाना है टीएफसी का, कर्व बनाना है टीवीसी का, और कर्व बनाना है टीसी का। तीनों का कर्व बनाइए। बन गया सर। बन गया। यस सर, बन गया। यस सर। कर्व क्या इस तरीके से आया है? यस सर, आपके ऊपर से यस सर। यस ऐसे ही है। ऐसे ही आया है ना? यस सर। लिखो तो कुछ पॉइंट्स। कर्व के नीचे।
the TC curve lies above the TBC and TFC curves. Full stop. It is because Sir, please. TC curve lies above TFC and TBC curve. It is because TC is the summation of TFC and TBC curves. TC is the summation of TFC and TBC curves. फिर नीचे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. TC and TFC curve TC and TFC curve start from the same point at zero level of output. Start from the same point at zero level of output. Full stop. It is because at zero level of output, the value of TBC is 0. Comma, which makes TC equal to TFC. Which makes TC equal to TFC. Full stop. This is why the two curves start from the same point when the output is 0. When the output is 0. Full stop. आगे लिखिएगा फिर से पैराग्राफ चेंज करके. TC and TBC curves are parallel to each other. TC and TBC curves are parallel to each other. Full stop. It is due to the fact that
TC minus TVC is equal to TFC. TC minus TVC is equal to TFC. Sorry, TC minus TVC is equal to TFC. क्या लिख रहे हैं? TC minus TVC is equal to TFC. Yes sir, सही है sir. And TFC remains true, and TFC remains constant, and TFC remains constant throughout. Full stop. Therefore, the two curves are parallel. Therefore, the two curves are parallel. Full stop. जो लिखे हैं उसको पढ़ लीजिए तो फटाफट. जैसे देख के पढ़िएगा कर्व वगैरह में, और जहां पे डाउट होगा उसको पूछिएगा. Yes sir. Yes, sir. सर Sir clear है sir. क्लियर है? Yes sir. Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है? यस सर. ठीक है. आगे लिखेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में AFC. AFC लिखिए. Average fixed cost is defined as the fixed cost per unit of output produced. Is defined as the fixed cost per unit of output produced.
full stop. The concept of average fixed cost applies only to the short run. Applies only to the short run, full stop. This cost is always falling with an increase in the units produced. Full stop. AFC का फॉर्मूला लिखना है नीचे. AFC is equal to AC minus AVC. AC minus AVC और दूसरा AFC is equal to TFC by Q. TFC by Q. अब 3 कॉलम बनाएंगे हम लोग. क्या फॉर्मूला लिखे थे? AC is equal to AC minus ABC. AFC is equal to ABC, sir. Yes, sir. And AFC is equal to TFC by Q. ठीक है. AFC निकाल के बताइए.
बन गया सर। यस सर। डैश यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यस सर। नो यहाँ सर, पे 10, 10 यहाँ पे 5 5, सर। 5 सर 3.33 5 2.5 2.5 2 2 1 1.66 1 1.67 आएगा मेरे ख्याल से। 1.66 या 67 अप्रोक्सीमेट और 32 1.43 आएगा। 4 यस सर। और सर 1.42 सर। यस सर। ऐसे कर ठीक से सॉल्व करो, 1.43 आएगा, 1.43 आएगा। यस सर। अब इस Yes. हाँ, अब इसका कर बनाना है। बन गया सर। कर बना लिए तुम लोग? यस सर बन गया। सर। यस सर। कर में रेंज क्या क्या लिए? एक एक का रेंज लेना है, 10 तक जाना है। यस सर। ये कर्व ऐसे आएगा। यस सर। यस सर। ऐसे आया है? यस सर। चलो ठीक यस है, ऐसे ही आएगा। तो लिखना स्टार्ट। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। द AFC कर्व starting from its maximum is continuously falling full stop. The following AFC curve will never intersect the x-axis, sorry, will never touch, लिखना intersect नहीं, will never touch the x-axis. Will never touch the x-axis. It is because the AFC is derived from TFC, because the AFC is derived from TFC and TFC can never be zero. And TFC can never be zero. रिपीट कीजिएगा। AFC is derived from AFC is derived from TFC यस सर। and TFC can never be zero. फॉर्मूला क्या लिखे थे? AFC बराबर क्या होता है? सर AFC is equal to AC minus ABC। अरे TFC by Q ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो TFC तो हमेशा 10 ही रहेगा, यस सर। 10 ही TFC है। हमेशा 10 रहेगा।
लेकिन क्वांटिटी 1 हो सकता है, क्वांटिटी 2 हो सकता है, क्वांटिटी 3 हो सकता है, क्वांटिटी 4 हो सकता है। लेकिन जब तक टीएफसी का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, एएफसी का भी वैल्यू आएगा जो कि उसको 0 से ऊपर रखेगा। यही कारण है कि एएफसी कर्व कितना भी गिर जाए लेकिन वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है। यस सर। यस सर। अब एक पॉइंट और लिख लो। The AFC curve is a rectangular hyperbola. Is a rectangular hyperbola. ये एक rectangular hyperbola है। अब ये rectangular hyperbola का मतलब क्या हुआ लिखो। यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम लोग बताएं आपको कि जैसे एक पे 10 हुआ तो आपने ये पॉइंट को y और x एक्सिस से मिला दिया। 2 पे 5 हुआ तो आपने इस पॉइंट को मिला दिया। यस और नो? यस सर। तो हर पॉइंट को y और x एक्सिस पे मिलाओगे, हर पॉइंट को y और x एक्सिस पे मिलाओगे तो मिलाने से एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। मिलाने से क्या बनेगा? रेक्टेंगल सर। रेक्टेंगल बनेगा। तो कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L इंटू बी। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू L into B. तो L इंटू बी। हाँ, तो L जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे आप क्या लिख रहे हैं? AFC लिख रहे हैं। और x एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं? आउटपुट लिख रहे हैं। तो L Yes, आपका sir. क्या हो गया? L आपका हो गया AFC और B क्या हो गया? क्वांटिटी। तो आप जब भी AFC इंटू क्यू करेंगे तो AFC इंटू क्यू बराबर क्या होता है? TFC होता है। AFC इंटू क्यू बराबर क्या होगा? TFC होगा। Yes, sir. यस सर। और TFC हमेशा और TFC हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। TFC Yes, हमेशा sir. क्या रहता है? Constant कांस्टेंट रहता रहता है। Constant रहता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप AFC कर्व के हर पॉइंट को y और x एक्सिस पे मिलाएंगे, मिलाने से जो रेक्टेंगल बनेगा, तो हर रेक्टेंगल का एरिया, हर एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? हर एक रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। लिख लो, लिख लो। When we या इसको ऐसे लिखो, when the points on AFC curve are projected to meet on y and x axis, comma, a rectangle is formed. A rectangle is formed, F-O-R-M-E-D. A rectangle is formed, full stop. The area of all the rectangles so formed, the area of all the rectangles so formed, the area of all the rectangles so formed is same, full stop. Therefore, the AFC curve is a rectangular hyperbola. The AFC curve is a rectangular hyperbola. Full stop. जो पढ़े हैं आज वो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। Yes, sir. यस सर। 'चलो, 'ठीक है। 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 'चलो,
तो